Hello everybody, this is Tarot Genie once again and welcome back to my channel and thank you so much for joining me guys. So इस वीडियो में I will take some of your quick questions जिसका मैं quick answers आपको दूंगी. अगर आपने questions में comment section में मुझसे पूछा है and I will try to remember as much as I can. And even before I get started with answering your quick question with quick answers from my spirit guides, did you get the chance to look at my Biparjoy cyclone predictions? जो कि फिर से एक बार absolutely 100% correct आया है. तो if you have not got the chance to see what my spirit guides predicted for Biparjoy cyclone, I will put the link of that video in the comment section. Do check it out and know for yourself what our spirit guides had predicted for the cyclone. All right, so let's get started. मुझे लग रहा है कि after yesterday's reading on Sumbul's mother, what I feel is that initially I said that I will not be doing reading on her mother, but जब मैंने देखा कि she is kind of hurting, this lady is hurting because of her child, तो मुझे लगता है कि I just feel drawn to bring her side of the story to to people who are concerned about it. Okay, so I think we will do this. We have talked a lot about Sumbul's father also, and some of you have requested to do a personality read for Sumbul's father to understand his personality, किस तरह की personality है, और वो काफी शायद public eye में भी हैं. तो चलिए हम उनको भी समझने की कोशिश करेंगे कि सुम्बुल के पिताजी कैसे हैं, क्या उनके strength हैं, क्या उनकी weaknesses है. ठीक है. And I will surely urge you and you guys as my viewers to have a mature way to looking at things guys. कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सब अगर हमको कोई अच्छा लगे तभी हम उसको respect दें. People can be different. People are different. We all are unique. We all have our own weaknesses. We all have our own strength. So let's be little mature to give a little, space to people for being just human. All right, so with that said, what guidance am I going to get started with? Let me get started with one guidance for all of you who are watching this video. देखते हैं आप लोगों के लिए कोई guidance spirit guide से आता है कि नहीं. Usually आप लोग सुम्बुल के लाइफ में बिजी रहते हो, फहमान के लाइफ में बिजी रहते हो, पर क्या अपने बारे में भी कुछ सोच रहे हो? या फिर ऐसा है कि अपने आप को इग्नोर करके आप अपने आप को किसी चीज में बिजी रखते हो. तो विथ दिस इंसाइट, विथ दिस इंस्पिरेशन, विथ दिस थिंग राइडिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड, आई डोंट नो व्हाई, आई वांट टू पुल अ कार्ड फॉर all the people watching the video. I think your spirit guides want me to get you this information because क्या है कि आप लोग सुम्बुल फहमान में बिजी रहते हैं, अपना कुछ चिंता नहीं हो रहा है. और स्पिरिट गाइड्स को अगर अपने इफ स्पिरिट गाइड्स वांट यू टू रीच विथ योर इंफॉर्मेशन, आपको कुछ गाइड करना है तो वो कहाँ पे जाएंगे. तो इसीलिए ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है. एक बहुत ही इजी ब्रीजी सा मैसेज मैं करूंगी फ्रॉम माय फेवरेट डेक. ऑलराइट, सो हाउ अबाउट गेटिंग स्टार्टेड. चलिए. So we will do one pick a card quick सा, जहाँ पे ये ग्रीन स्टोन है और यहाँ पे ये ब्लैक, दिस इज एक्वामरीन. जो भी स्टोन आप चूज कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर रहा हो आपको, you can choose the card. Okay, we'll get started with it. So all the people who have chosen the green stone, let's see आपके लिए आपके spirit guides क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं. And they don't know how to reach out to you, so probably they are reaching out to you through this video. Totally unexpected. And your guidance is green one, treasure chest. All right, perfect. The blue one, what guidance do you guys need to hear? And you are not giving any space to your spirit guides to come up with your. All right, so you have yes. तो कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपके मन मस्तिष्क में,
क्वेश्चन अगर दौड़ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दोनों ही लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। शायद हिम्मत हार रहे हो किसी चीज से, तो हिम्मत मत हारिए। whatever you are doing, pile number 1, there is a treasure chest waiting for you for your hard work. It has been a long time, कुछ भी होगा, लेकिन हिम्मत मत हारिए, stay positive। आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलने वाला है। एंड माय गुडनेस, क्या मिलने वाला है आपको रिजल्ट ट्रेजर चेस्ट के थ्रू। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव, डोंट गिव अप, राइट? क्योंकि स्पिरिट गाइड्स हैव कम रियली आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू टू, and more importantly to give you this information, so you need to be positive। and दूसरे जो लोग हैं, yes, आप जो भी चीज कर रहे हो सही कर रहे हो, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, हिम्मत मत हारिए, have faith, you guys are being helped even if you don't see how your situation is being helped। योर स्पिरिट गाइड्स, द डिवाइन यूनिवर्स, कृष्णा आपकी मदद जरूर कर रहे हैं। तो हिम्मत मत हारिए। सामने में सिचुएशंस भले ही ऐसा ना लगे कि आपको कोई हेल्प कर रहा है, पर डिवाइन यूनिवर्स इज ऑलवेज 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 वर्किंग फॉर यू गाइज। डू रिमेंबर दैट। All right, that was a quick message, and you know what, this message, I don't really do this, but I just felt drawn all of a sudden to do this। इसका मतलब है कि स्पिरिट गाइड्स, जो भी आप लोग यहाँ पे मैसेज देख रहे हो, स्पिरिट गाइड्स, they are walking the extra mile to give you this message। So give them a big hug, shout out to them, say thank you, express your gratitude for the beautiful message your spirit guides have brought you, going out of the way, you are not sitting on any pick a card channel, pick a card reading to get this message, and yet spirit guides have gone out of the way to give you this message। and that is the power of universe, and that is how universe is always working for us, is always has our back। okay? चलिए ठीक है, ये तो मैसेज आप लोगों के लिए हो गया। चलिए मैं एक क्विक मैसेज लेती हूँ। I will take a quick message on Sumbul शक्ति और राघव पे मैं मैसेज लूंगी। एक क्विक मैसेज आया है कि क्वेश्चन आया है, व्हाट इज ब्लीडिंग देयर रिलेशनशिप। शक्ति और राघव के रीडिंग में हमने देखा है कि रिलेशनशिप ब्लीड कर रही है। आपने क्वेश्चन पूछा 3 ऑफ सोर्ड का जो एटीट्यूड है ये उनके रीडिंग में क्या चीज है, क्या ये राघव की रीडिंग हो सकती है, क्या ये राघव की एनर्जी हो सकती है। तो ये जो रीडिंग हमने की थी उनके रिलेशनशिप की रीडिंग की थी, तो ये ओवरऑल इनके रिलेशनशिप का प्रेजेंट स्टेटस है, एटीट्यूड है। आपने ये भी लिखा है कि पॉजिटिव होते हुए कि जो डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो उनके रिलेशनशिप में अभी आगे आने वाला है, क्या ये बदल सकता है? एब्सोल्युटली बदल सकता है, एंड दैट इज द पावर ऑफ टैरो। आप फ्यूचर की एनर्जी को, अपनी प्रेजेंट एनर्जी को चेंज करके बदल सकते हैं गाइस, टू क्वाइट एन एक्सटेंट, अनलेस एंड अनटिल दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। बट इस केस में तो डेफिनेटली नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट एनर्जी जिसके साथ आपको प्ले ऑन करना है वो है 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। और 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी का मतलब ही होता है कि यस, यू आर फीलिंग वेरी टाइड डाउन, बॉग्ड डाउन। आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई ऑप्शंस नहीं है, सोल्यूशंस नहीं है, आप हर चीज करके थक जा रहे हो। मगर क्या है कि यस, इवन तो यू आर, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्स ने चीजें आपके लिए काफी थोड़ी सी, हाउ डू आई से, चैलेंजिंग बना दी है, स्टिकी बना दी है, और आप कोशिश करके भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं राघव और शक्ति का बात कर रही हूं, उनके रिलेशनशिप का बात कर रही हूं, तो उनको क्या करना है? उनको पर्सिवियर करना है। दिस विल टेस्ट हर कमिटमेंट, लव, पेशेंस, हाउ लॉन्ग विल दे गो फॉर ईच अदर। और 8 ऑफ सोर्ड है, इसका मतलब ही होता है कि अगर आप मेहनत करें तो आप ये पट्टी खोल सकते हो, क्योंकि हाथ यहाँ पे टाइड है थोड़ा सा, तो हाथ को खोलने में थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि यस, यू विल हैव टू स्लोली, पेशेंटली वर्क ऑन द रिलेशनशिप, नॉट गिव अप ऑन द रिलेशनशिप। और यहाँ पे आपका जो कमिटमेंट है रिलेशनशिप से टेस्ट होगा कि जब डिफिकल्ट टाइम आता है तो क्या आप एक दूसरे को छोड़ के निकल जाते हैं रिलेशनशिप में, या फिर यू स्टिक थ्रू द थिक एंड थिन। तो क्या ये रिलेशनशिप अपने
एनर्जी से, अपने एफर्ट से, अपने कमिटमेंट से, अपने लव से शक्ति और राघव बदल सकते हैं, 100% बदल सकते हैं, क्योंकि द एनर्जी दैट द यूनिवर्स हैज गिवन देम टू प्ले विथ इज अ वेरी इज अ एनर्जी वेयर दे कैन मेक द चेंजेस. 8 of Swords is where you can make the changes and create your own reality. Do you get that? ये कोई मेजर आर्काना का कार्ड नहीं है जहां पे this is written in stone. This is a very little obstacle or challenge thrown on their relationship to work with it, play with it. क्योंकि लव इज नॉट ऑलवेज हंकी डोरी. लव में चैलेंजेस भी आएगा, तो क्या आप उस समय छोड़ के भाग जाते हो या फिर यू स्टिक विद इट? यही तो यूनिवर्स देखना चाहता है. तो देखते हैं कि वो लोग अपनी एनर्जी कैसे चेंज कर पाते हैं कि नहीं. अगर यहाँ पे वो क्वाइट पॉसिबली ये जो इनका चैलेंज है, मुझे लगता है कि एक लास्ट लेवल चैलेंज है. क्यों? क्योंकि इसके बाद एक मेजर चेंजेस उनके लाइफ में आने वाला है, फॉर द गुड और फॉर द एंड. ऑल राइट, यस. यहां से या तो वो इस रास्ते जाएंगे या फिर उस, जो भी डिसीजंस लेते हैं वो. ये चैरियट का कार्ड है. यहां पे चैरियट में काफी कंफ्यूजन दोनों को हो रहा है ना. इस रास्ते जाएं या उस रास्ते जाएं, रिलेशनशिप को छोड़ दें या फिर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें, पर्सिवियर करें, गो ऑन विद द रिलेशनशिप. और जैसा डिसीजन दोनों लेगा, दोनों लेंगे, उसी हिसाब से आगे की चीजें होंगी. अगर वो गिव अप कर देते हैं तो डेफिनेटली डेथ कार्ड के साथ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप हो जाएगा. लेकिन इफ दे कंटिन्यू कि नहीं, वी विल स्टिक विद इट, बिकॉज दैट इज वॉट लव इज ऑल अबाउट, स्टिकिंग टू ईच अदर व्हेन थिंग्स गेट रियली डिफिकल्ट. एंड इफ दे स्टिक विद इट, आई थिंक दे विल बी रिवॉर्डेड इन अ बिग वे. मेजर आर्काना का कार्ड उनके लाइफ में एक ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आ सकता है. सो लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दैट. इन शॉर्ट, 8 of Swords इज अ कार्ड जो कि काफी चैलेंजिंग कार्ड यूनिवर्स ने उनको फेंका है, ऑब्स्टैकल थ्रो किया है दिस शक्ति एंड राघव के लिए. मगर ये कार्ड माइनर आर्काना का कार्ड है, एंड इफ दे वांट दे कैन रियली प्ले इट वेल. ये ऐसा कार्ड नहीं है. और एंड मोर ओवर 8 of Swords का कार्ड है. ये 8 of Swords का कार्ड में कोई एक्सटर्नल प्लेयर्स नहीं है. यू अंडरस्टैंड? एक्सटर्नल प्लेयर के कोर्ट में बॉल नहीं है, यानी कि कोर्ट में जो बॉल है वो हमारे ही कोर्ट में है. यानी कि वी आर सिटिंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील. कहने का मतलब है कि दीज टू गाइज आर सिटिंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील ऑफ देयर रिलेशनशिप. तो वो अगर चाहें तो रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसा कि आप ये चैरियट के कार्ड में देख भी रहे हो. ऑलराइट, तो वो अपने जो ये प्यार की गाड़ी है, दिस कपल राघव एंड शक्ति, जिस तरफ लेके जाएंगे उस तरफ ही जाएगी. तो अब कोर्ट जो बॉल है पूरी तरह से इनके कोर्ट में है गाइस. ऑलराइट, ओके. सो anyways, dear angels, can we please know what is really bleeding their relationship and how what is bleeding their relationship? Fans want to know what is bleeding their relationship, not thinking it through. धैर्य के साथ उनको सोच, they should really sit with this issue instead of running and rushing and looking out for options. They really need to sit with this issue. So what is really bleeding their relationship? Shakti और राघव का. All right. Queen of Wands and what? There's so many cards here. फिर से डेथ का कार्ड. Do you see this? Yeah, yes. हमने अभी क्या एक्सप्लेनेशन किया है कि अगर वो इस फेज में हैं अपने रिलेशनशिप के, वो इस क्रॉसरोड्स पे हैं जहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एक पॉजिटिव टर्न भी उनके लाइफ में ला सकती है, एज इफ कि उनका 2.0 फेज स्टार्ट होगा रिलेशनशिप का. तो ये डेथ के बाद, ये डेथ जो है, दिस डेथ कैन ऑल्सो बी द डेथ ऑफ द challenges that the relationship is going through. कहने का मतलब है कि अभी जो उनके रिलेशनशिप में ये जो 3 of Swords की स्टेटस बनी हुई है ना, डिफिकल्टी, ब्लीडिंग, ये चेंज हो सकता है इनटू अ न्यू 2.0 version altogether, a new phase in their life right from the beginning with
And how will this phase be? Guys, when you go through all the challenges, when you are into a relationship जहां पे आप challenges के up and down के through जाके आप एक दूसरे को समझते हैं और फिर you don't give up on each other, तो क्या होता है आप बताओ? तब यही होता है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है भाई. यू आर नॉट जस्ट बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, लेकिन जब आप चैलेंजेस के थ्रू स्टिक ऑन करते हैं, you don't give up on each other, then what will this death give you? The death will be that of a difficult energy of their relationship. जो ये सैटर्न ग्रह होता है ना, जो हमारे शनिदेव होते हैं, जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस लाते हैं और चेक करते हैं कि भाई तुम दोनों को इश्क है, तो चलो हम तुम दोनों की इश्क की परीक्षा लेते हैं. तो ये परीक्षा ही उन दोनों की इश्क की हो रही है, उन लोगों का प्यार का, उन लोगों के प्रेम का हो रहा है. और अभी उनके बॉल में, कोर्ट में बॉल है, और वो जिस तरह से अपने अपनी चैरियट को लेके जाएंगे, हिम्मत हार देते हैं तो ये डेथ हो जाएगा पूरा उनके रिलेशनशिप का ही, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन इफ दे स्टिक ऑन विद ईच अदर, किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा? ये जो डिफिकल्टी उनके लाइफ में बनी हुई थी ना, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो अपना 2.0 वर्जन स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप में. एंड दैट इज ब्यूटिफुल. एंड दे कैन प्ले विद दिस एनर्जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि वो 8 ऑफ सोर्ड का माइनर अरकाना का एनर्जी है. दे कैन इजिली प्ले ऑन विद इट. ओके, ऑल राइट. और क्या है, ये वाली चीजें हमें पता चल गई. ये वाला कार्ड राघव के रीडिंग में आया था ना कि उसे लग रहा था कि जस्टिस नहीं होने वाला है, तो नो, स्टिक ऑन विद इट. हर्मिट का कार्ड आया था ना, बी पेशेंट, थिंक थ्रू इट, सिट ऑन विद इट. और अपनी इंट्यूशन की सुनिए आप लोग. इन दोनों को अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, ना कि अपने ईगो का या फिर आसपास के जो लोग बोल रहे हैं उसका. और वो तब सोच पाएंगे जब वो अपने केव में जाके शांत होके उस चीज पे बैठ के रिफ्लेक्शन करेंगे. यस, थिंग्स हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये वाला कार्ड देखियो आप, फिर से आया है. इनकी रीडिंग मैंने कल की थी. 7 ऑफ वॉन्ड्स उस समय भी आया था और इसी तरह से रिवर्स पोजीशन में आया था. 9 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स है. अब ये 9 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स इंटरनल प्रेशर भी बता रहा है. इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी, एज इफ की देयर आर लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ अटैकिंग द रिलेशनशिप. ओके, डेफिनेटली उनके रिलेशनशिप में एक एक्सटर्नल सपोर्ट तो नहीं है, ये हम तो डेफिनेटली समझ सकते हैं. प्लस एक्सटर्नल बाहर के लोग भी काइंड ऑफ पोक करते रहते हैं. समझ रहे में आ रहा है. और आप इस सिचुएशन में जानिए कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा जब हमारे आसपास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, जब हमारे माता जी पिताजी या फिर हमारे सिबलिंग्स जो होते हैं, जो हमारा सच में अच्छा चाहते हैं, इस सिचुएशन में उनका हेल्प, उनका जो एक मॉरल सपोर्ट होता है, कितना हमको जरूरत होता है वो. एंड इट गोज अ लॉन्ग वे इन strengthening us as a human being, and even strengthening our relationships and keeping us strong emotionally, mentally. तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये दोनों के आसपास काफी ऐसे लोग हैं जो कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप बोल सकते हैं कि देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, अटैकिंग, गॉसिप, ये सारी चीजें हैं, और जिसके कारण कोई एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है. खुद भी काफी उलझे से हैं. तो देख रहे हो कि खुद अंदर का उलझन और बाहर का अटैक चीजों को और भी एक मेसी और मिजरेबल बना रहा है इन लोगों के लिए. बट नेवरदलेस ये उनका परीक्षा है, और अगर वो मिलजुल के रहते हैं तो दे कैन गो फॉर द स्टार्स. दे कैन. यहाँ पे यही है कि राघव को और शक्ति को एक दूसरे पे गिव अप नहीं करना चाहिए. एक दूसरे पे चढ़ के देख रहे हो कैसे इसने इतना ऊंचा स्टार भी पा लिया है. तो यस, डिफिकल्टी तो डेफिनेटली वो दोनों फील कर रहे हैं, कोशिश करके भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन दे शुड नॉट गिव अप एंड दे शुड बिल्ड अप ऑन ईच अदर. एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए उनको इस समय में. और अगर वो सहारा बनते हैं तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन खत्म होगा, ना कि उनकी रिलेशनशिप खत्म होगी. अगर वो एक दूसरे का सहारा बनके एक दूसरे को हेल्प करते हैं एंड दे कंटिन्यू टू स्टिक विद ईच अदर, तो ये जो डेथ होगा ये उनके चैलेंज का डेथ होगा. ये जो उनकी रिलेशनशिप ब्लीड हो रही है उसका डेथ होगा, और वो एक नया
2.0 रिलेशनशिप फेज स्टार्ट करेंगे. अदरवाइज इफ दे गिव अप ऑन दिस विथ बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस एंड ऑल दैट, नॉट लिसनिंग टू, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं. तो अगर आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो तो किस चीज की सुन रहे हो? डेफिनेटली आप अपने ईगो की सुन रहे हैं, अपने आसपास के लोगों की सुन रहे हो. आसपास के लोग काफी अटैक कर रहे हैं, तुम लोग एक दूसरे के लिए बने नहीं हो, र्यूमर्स है, क्या है नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं. तो उनको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए. ये दोनों जो कपल है ना, ये कपल जो है शक्ति एंड राघव, इनको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, जो कि अभी ये अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं. और अगर अपनी ईगो की सुनेंगे, आसपास के लोग की सुनेंगे, तब तो इनका सीधा जो ये चैरियट है डेथ पे जाएगा और इनकी रिलेशनशिप का ही शायद ये डेथ होगा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा. बट दे कैन ऑलवेज लिसन टू देयर इंट्यूशन, बी पेशेंट, वर्क विथ ईच अदर. देखो कितने टैक्टफुली ये लोग एक दूसरे को के ऊपर चढ़ के इस बंदे ने स्टार को पा लिया है. सो वेरी टैक्टफुल, वेरी स्मार्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी है. इसने इसको अपने ऊपर चढ़ा लिया है, ये यहां पे चढ़ा हुआ है, बहुत टैक्टफुली उसने अपने, बिकॉज कॉमन गोल है कि इसको पाना है. तो जब आप दोनों बेसिकली डिफरेंट डायरेक्शन में मत जाओ, एक कॉमन गोल करके उसके ऊपर फोकस करके अपने आप को अचीव करिए. और कॉमन गोल क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप का? हैप्पीनेस, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना. एंड इंट्यूशन की सुननी चाहिए इनको, अपने आसपास के लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, है ना. समझ गए हो ना क्या बोल रही हूं मैं? क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, और मान लेते कि ये शक्ति है, तो मे बी शी नीड्स टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड अबाउट हर सेल्फ. मे बी शी नीड्स टू टेक अ सोर्ड एंड कट ऑफ सम पीपल फ्रॉम हर लाइफ, जो कि उसको फालतू की स्टोरी सुनाते हैं. मे बी एक्चुअली यू नो व्हाट, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड आ गई है. सो डू यू सी दिस, हाउ दिस अनदर वुमन एंगल इज कमिंग इन देयर रिलेशनशिप? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक पहले वाली रीडिंग में भी, जो बहुत पहले किया था मैंने, उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शी वाज शक्ति. आई वाज यूजिंग दिस डेक, आई यूज दिस डेक. इसमें भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शक्ति आई थी और ये क्वीन ऑफ सोर्ड भी आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो यहाँ पे डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये शहनाज के कारण ही, ये जो र्यूमर्स उठे हैं ना, उसी के कारण ये सारी इश्यू हुई है. I actually saw Shehnaz in some metallic blue, this kind of off-shoulder dress. She was definitely looking very pretty, but this was exactly the color of her dress. Blue color, metallic something she was wearing. And she was looking, of course, very glamorous and chic. और यहाँ पे यही वाली इशू हो रही है. तो आई थिंक ये जो र्यूमर्स और जो भी चीजें हैं ना, जो शहनाज का एंगल आया है ना इनके रिलेशनशिप में, उसके कारण है, उसके कारण ही है. बट एनी वेज दे नीड टू फोकस ऑन देमसेल्व्स. देखो बाहर में एक शहनाज हो सकती है, बाहर में कोई भी लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो उसको कोई भी आके तोड़ सकता है. और so you cannot really blame anybody. It's not as much the thing with Shehnaz as much it is about their own internal thoughts. देखो यहाँ पे जो शक्ति है वो इसके तरफ ही देख रही है, और अगर ये यहाँ पे फोकस करती रही तो ये जो डेथ भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं ना, यमराज, ये इनके रिलेशनशिप पे अटैक कर देंगे. तो शक्ति रियली नीड्स टू चेंज हर आउटलुक. स्टॉप फोकसिंग ऑन शहनाज, स्टॉप गेटिंग इनसिक्योर. क्योंकि क्या है ना, वो ईगो की सुन रही है, वो आसपास के लोगों की बातें सुन रही है ना, और वो यहाँ पे फोकस करके बैठी है, जबकि ये अपने सीट पे जैसी है वैसी बैठी है. शी इज नॉट इन नेगेटिव अवतार और एनीथिंग, ओके. बट यहाँ पे फोकस ही यहाँ पे इसका है. शी नीड्स टू चेंज हर फोकस. आई थिंक ये अगर यहाँ पे ये ऑब्सेशन खत्म नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे डेथ महाराज जो बैठे हैं ना, ये अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर सकते हैं. एक्चुअली बेसिकली ही विल गेट मौका टू अटैक ऑन द रिलेशनशिप. डू यू अंडरस्टैंड दैट? He will get the mauka to use his kulhadi here on the relationship, of course.
तो क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है? शक्ति को इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्वीन ऑफ सोर्ड विच इज शहनाज, शी नीड्स टू शिफ्ट हर फोकस ऑन ब्रिंगिंग न्यू लाइफ टू हर रिलेशनशिप by listening to her intuition, believing that things will be fine instead of listening to all the noise outside. समझ में आ रहा है? क्योंकि बार बार ये जस्टिस का कार्ड आना उल्टा ये बता रहा है कि जस्टिस इनको मिल सकता है, एक न्यू लाइफ इनके रिलेशनशिप में आ सकती है अगर ये पर्सपेक्टिव चेंज करे। अगर आप इसी के बारे में फोकस्ड रहोगे, शहनाज के बारे में, तो आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर कैसे करोगे? एंड इट विल गेट अनोइंग फॉर अदर पीपल ऑल्सो। तो यूनिवर्स ने क्लियरली इनको एक जस्टिस का कार्ड उल्टा देके, इंट्यूशन का कार्ड उल्टा देके, कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, ईगो की मत सुनो। जस्टिस इज पॉसिबल इन योर रिलेशनशिप। जैसा कि हमने इन स्टार्टिंग में भी बोला कि ये इनके पास जो कार्ड है, एनर्जी जो यूनिवर्स ने इनको दिया है, उसको प्ले ऑन कर सकते हैं अपने फेवर में और एक नया फेज, एक न्यू लीज ऑफ लाइफ ये अपने रिलेशनशिप को दे सकते हैं। दिस इज द फूल कार्ड 2.0, यानी कि एक नई लाइफ, एक नई जिंदगी अपने रिलेशनशिप को दे सकते हैं। जस्टिस आ सकता है, लेकिन इफ यू कंटिन्यू टू स्टे लॉक्ड इन योर ओन माइंडसेट, योर ओन साइकोलॉजिकल ड्रामा इन्वॉल्विंग सम अदर पर्सन, तो ये इस पर्सन की गलती नहीं होती है, ये आपकी अपनी ही इनसिक्योरिटी है। तब कोई क्या कर सकता है? तब आप बस ये जो मिस्टर डेथ है ना, इनको आप मौका दे रहे हो अपनी इम्यूनिटी वीक करके, खुद शक करके, खुद अपने आप को शक के घेरे में रख के, या फिर अपने आप के अपने थॉट्स को, ओवर थिंकिंग को, अपने आप को क्लाउडेड रह के आप इनको ही मौका दे रहे हो कि आपके रिलेशनशिप को ना ये कर दे। तो आप समझ रहे हो ना कि क्या है इनका रिलेशनशिप। सो व्हाट इज ब्लीडिंग दिस रिलेशनशिप? शक्ति इज अननेसेसरी, टू मच फोकस ऑन शहनाज is bleeding this relationship, okay? And she should listen to her intuition, जो कि वो नहीं सुन रही है। Justice is possible, यहाँ पे actually 80%, 60-70% chances है कि ये अपने चीजों को सुधार सकती है, ये दोनों सुधार सकते हैं और एक नया 2.0 फेज इनके रिलेशनशिप का स्टार्ट हो सकता है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 8 of Swords इज टोटली द बॉल इज इन योर कोर्ट एंड यू कैन मेक इट हैपन, बट उसके लिए आपको बहुत ही टैक्टिस की जरूरत है। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड ऑल दैट। ऑल राइट, लेट्स सी। क्लियरली मैंने ये वाला क्वेश्चन आपका काफी डिटेल में फिर से आंसर कर दिया। I mean, you know, when you see so many things, you cannot help but keep going through it because there was just a different kind of story यहाँ पे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन आया है, बताए क्या कि आलिया भट्ट एंड नीतू कपूर what kind of thing is। अब सास बहू है तो नोक झोंक तू मैं तो होने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट नेवरदलेस विल स्टिल चेक इट आउट। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट गाइस। तो हम क्वेश्चन करेंगे या फिर क्वेश्चन लेंगे हम व्हाट नीतू कपूर थिंक्स व्हाट काइंड ऑफ बहू आलिया भट्ट इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लेंगे। व्हाट डियर एंजल्स कैन वी प्लीज नो what are Neetu Kapoor's thought for her daughter-in-law Alia Bhatt? How she sees her as a daughter-in-law. How Neetu Kapoor sees Alia Bhatt as a daughter-in-law. Dear angels, we thank you so much for this guidance. I know not a very kind of a little cheesy, but what Neetu Kapoor, all right, what she feels about Alia Bhatt. Alia Bhatt की एक नई फेज स्टार्ट हो गई है। इट्स अ टोटल डिफरेंट लाइफ फॉर हर। ओह माय गुडनेस, ये वाला कार्ड अभी भी आया था ना शफल करते वक्त। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, हाउ शी फील्स अबाउट आलिया भट्ट एज अ डॉटर इन लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फूल 2.0 से हमें ये समझ में आ रहा है कि आलिया भट्ट इज लाइक टोटली इनटू हर न्यू लाइफ, न्यू फेज ऑफ लाइफ। जैसे बोलते हैं ना कि शादी के बाद आपकी एक नई लाइफ शुरू होती है, तो व्हाट शी फील्स, उसको लगता है
सॉरी, उसको लगता है कि आलिया भट्ट टाइप शादी करने के बाद शी इज टोटली इनटू दिस न्यू कपूर फैमिली, बिहेविंग लाइक अ कपूर बहू, और बोलते ना कि फैमिली में बिल्कुल घुल मिल सी गई है, और उसने अपना बिल्कुल पहले का हर चीज को हटा के टोटली शी इज इनटू हर न्यू लाइफ 2.0, उसके लाइफ का 2.0 वर्जन स्टार्ट हो गया है, फेज स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज सोच रही है, तो जब ये सोच रही है तो शी इज डेफिनेटली, आई थिंक शी इज वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि चलो ठीक है। What else she thinks about Alia Bhatt as a bahu? Alia Bhatt as a bahu, what she thinks about her Page of Sword. All right. Page of Sword, तो definitely she thinks that she is very kiddish. Page है, Page is the kid of the tarot card, तो definitely she thinks that she is quite a kid, immature है, थोड़ी या काफी। what else? She also sees her as a very somebody who is very curious to learn things. You understand? हमने जब आलिया और रणवीर की रीडिंग की थी, उनकी पर्सनालिटी रीडिंग की थी, रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया था, तो उसमें ये आया था ना कि शिका, और काफी लोगों ने मेंशन भी किया था कि आलिया हैज एक्चुअली मैनिफेस्टेड गेटिंग मैरिड टू रणबीर कपूर। तो उससे हमें ये पता चलता है कि शी वॉज वेरी कीन इन टू गेटिंग मैरिड टू दिस गाय, एंड ऑल्सो दैट शी वॉज वेरी कीन इन टू गेटिंग मैरिड इन टू दिस फैमिली। तो नाउ जबकि वो फैमिली में उसकी शादी हो गई है, तो वो एक तरह से तो बिल्कुल रम गई है एज अ कपूर बहू, जो कि उसकी बहू, उसकी जो मदर इन लॉ है नीतू कपूर, शी इज सीइंग ऑल्सो इन दिस वे कि यस, ये बंदी तो बिल्कुल बहू के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल रम गई है हमारे फैमिली में, एंड अपने एक नई जो जिंदगी स्टार्ट हुई है उसकी शादी के बाद उसमें। एंड पेज के साथ शी हैज शी इज क्वाइट अ किड, और काफी बचकानी है या फिर इमेच्योर है, इस तरह से वो देख रही है उसको। प्लस वो ये भी देखती है कि शी इज वेरी क्यूरियस टू लर्न थिंग्स, जैसे कि मे बी द रिचुअल्स ऑफ द फैमिली में क्या है नहीं है, फैमिली ट्रेडिशन क्या है, क्या चीज फैमिली की जो भी फैमिली का जो अपना एक ट्रेडिशन होता है, रस्म होता है, रिवाज होता है, वो सारी चीजों को लर्न करने में वो काफी क्यूरियोसिटी दिखाती है। तो वाओ, दिस इज हैप्पी, she is like, looks like she's actually, ये तीनों कार्ड ही very positive है, and the story that is coming out of this card is also kind of एक दूसरे को ताना बाना बुनता सा हुआ कार्ड है, स्टोरीज है। तो या काफी वो जैसे कि फैमिली में रम गई है। तो यहाँ पे जैसे जिस तरह से वो हर चीज में इंटरेस्ट ले रही है, जैसे कि हर फैमिली की एक का अपना एक होता है ना, जैसे कि कुल गुरु होती है, कुल देवी होती है, उनका अपना एक रस्म होता है, तो वो उन सारी चीजों में शी टेक्स लॉट ऑफ इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी दिखाती है, इंटरेस्ट दिखाती है। और डेफिनेटली इसका मतलब भी होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट दिखा रही है, क्यूरियोसिटी दिखा रही है, तो डेफिनेटली वो रम गई है इस न्यू फैमिली में, अपने नए फेज में, तभी तो वो इंटरेस्ट दिखा रही है। बट प्लस ये भी वो देखती है कि यहाँ पे तो उसको काफी थोड़ी सी बच्ची जैसी किडिश है थोड़ा सा, पर यहाँ पे उसमें ऐसा भी है कि वो काफी स्ट्रांग है। she feels that she is quite strong, even though on the surface she comes across as someone who is a bit kiddish, but she has this lot of strength in her. That is how she sees her. I wonder what strength she is. Maybe, kind of, as we all know that this Ranbir Kapoor was quite a Casanova, and, kind of taming this Casanova and not only getting him married, but also kind of, this guy continues to be in a very happy relationship thus far with this girl. तो कुछ तो उसमें strength definitely है इस बंदी में, हम लोग समझ सकते हैं। And her mother-in-law is also seeing this strength in her. कि maybe she is very kiddish, सामने में कुछ आता नहीं है, लोग भी उसका मजाक उड़ा देते हैं, बट कुछ तो यहाँ पे उसमें इंटरनल पावर है। ओके, तो वो चीज तो बिल्कुल होगी ही, तभी तो इस बंदे ने उससे शादी भी की है। तो ये दिस इज व्हाट शी थिंक्स अबाउट हर बहू आलिया भट्ट। ऑल राइट, और यहां पे क्या देख रही है वो?
9 ऑफ वॉन्ड्स, हिम्मत नहीं हारती है वो किसी भी चीज से, आलिया भट्ट। सो क्वाइट रिसाइलेंस है उसमें। और ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आप देख रहे हो ना, उसके इस रिसाइलेंस से ही आता है। अब ये कैसे दोनों बहुत ही ब्यूटीफुली लिंक्ड हो जाते हैं। आप में स्ट्रेंथ तभी आता है जैसे कि आपके मसल्स स्ट्रांग और रिप्ड अप कब होते हैं, जब आप रेप पे रेप करते जाते हो और आप कंटिन्यूअसली करते हैं और आप कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली करते हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट रिजाइलेंस, प्रॉब्लम के सामने हार नहीं मानना। और जब प्रॉब्लम के सामने आप हार नहीं मान रहे हो तो क्या आप दिखा रहे हो, आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, है ना। तो शी सीज दिस लेडी एज, इवन दो शी इज वेरी किडिश ऑन द फेस, बहुत ही बेबी लाइक है, बचकानी हरकतें हैं या कुछ भी इस तरह का है, इमेच्योर है, मे बी शी लुक्स वेरी इमेच्योर एज अ पेज, बट उसमें काफी स्ट्रांग है, उसमें काफी स्ट्रेंथ है। और ये बात तो आप भी मानोगे कि वो उसने कैसेनोवा, रणवीर कपूर जैसे कैसेनोवा जिसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी, उसको उसने शादी के लिए राजी कर लिया और वो हैप्पी भी है। तो कुछ तो इसमें बात है, कुछ तो शी हैज सम मेटल। इट्स मोर लाइक शी गेट्स व्हाट शी वांट्स। इसकी एनर्जी काफी याद है, वो डेविल वेविल भी आया हुआ था। But this is what her attitude is. Like if she wants something, she is guns blazing going for it. ये देखो, so this is her strength coming across. ये strength तो सामने में दिख, okay, actually if you see this, यहाँ पे देख रहे हो कि कैसी एक docile सी लग रही है, जैसे कि like very coy, बहुत ही very elegant and delicate kind of a demeanor here. लेकिन इस delicate demeanor के पीछे ये पैंथर वाला स्ट्रेंथ है उसका भाई। I mean, if she wants something, she wants, she will go guns blazing for it. Like wow. सामने से तुम्हें लगेगा कि she is very coy, सीधी सादी सी, लेकिन पीछे में उसका, अगर उसके सामान को कोई छुओ तो वो चीर फाड़ देगी, something like that. So this is where her strength comes from. Like she is not, वो ना लेने वाली बंदी नहीं है, she will quite take it, okay? ये है। All right, यहाँ से देख लेते हैं what she feels about her बहू नीतू, the angels, what नीतू कपूर feels about her बहू आलिया भट्ट। Thank you so much for the guidance. Surrender the idea that you can fix someone. यहाँ पे क्या है? Yes, काफी स्टबर्न है वो। तो हमने अभी यही बात की है ना कि इफ शी वॉन्ट्स समथिंग शी विल नॉट लीव इट, चाहे कितना भी अपोजिशन हो, वो हिम्मत नहीं हारने वाली है, वो तो लेके रहेगी उसको जो भी चीज चाहिए। और यही चीज से उसकी स्ट्रेंथ आती है। सामने में इट इज वेरी होमली और वेरी डेलिकेट काइंड, तो लोग इससे धोखा खा सकते हैं उसको स्ट्रेंथ। अगर आप इस कार्ड को देखो तो आपको लगेगा कि नहीं, ये कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड है। यू कैन मिस्टेक दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज ब्रिंगिंग स्पेशल मैसेज इज कमिंग आउट थ्रू दिस मैसेज, थ्रू दिस कार्ड, कि सामने में उसे देख के लगता नहीं है कि शी इज वेरी दिस इज हर एटीट्यूड। उसके छोटे से पतीत बॉडी को देख के आपको लगेगा कि बस एवी है वो, पर उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिस इज हर एटीट्यूड। इसके पीछे उसका जो एटीट्यूड है वो ये वाला है, और ये तो बस एक धोखा है। शी हैज सम स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मैन, और ये वाला स्टबर्ननेस का कार्ड यही बता रहा है। शी विल नॉट गिव अप। वो बहुत शी इज लाइक दिस इज व्हाट इट इज। इफ यू आर टेंसिंग अप और टेकिंग अ रिजिड स्टैंड अबाउट समथिंग, gently observe yourself and become more yielding. So वो बहुत जिद्दी है and she is like this. काफी जिद के कारण ही उसे लगता है कि वो किसी को भी ठीक कर सकती है। तो आई थिंक ये सारी चीजें तो हैं ही। प्लस नीतू कपूर अपने बहू को कैसे देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, बहुत ही ज्यादा स्टबर्न है, जिद्दी है। और स्टबर्न, जिद्दी, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और सामने से दिखता नहीं है कि उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है, बट पीछे में ऐसा वाइल्ड स्ट्रेंथ है उसका। यू गेट दिस इज आलिया भट्ट रियल। यहाँ पे सारा स्टाइल निकल गया है, ऑल द पॉइज स्टाइल। हियर शी इज द रियल वन, दिस इज द रियल थिंग।
इन हर ट्रू कलर, ट्रू अवतार आप बोल सकते हैं. सामने में तो वेरी डोसाइल लाइक दैट. सो दिस इज व्हाट शी थिंक्स अबाउट हर बहू. अब हम ये देख लेते हैं कि बहू भी अपनी सास के बारे में क्या सोच रही है ना. तो जैसा कि उसकी इच्छा थी कि वो रणवीर कपूर से शादी करे और कपूर खानदान की बहू बने, तो अब उसकी जब इच्छा पूरी होगी है ना, शी हैज मैनिफेस्टेड दिस रणवीर गाय एंड द फैमिली. So now she is totally into it and enjoying it. And why not? After that, after all, she wanted that, right? So totally enjoying the bahu of, she's totally enjoying being the bahu of Kapoor family. So अपने face को total enjoy कर रही है. So dear angels, can we please know what are Alia Bhatt's thought on her mother-in-law? On her mother-in-law, Neetu Kapoor. What she feels about her mother-in-law. चलो यही ले लेते हैं. Quite interfering. Okay, so what she feels that her mother-in-law is definitely very interfering. Okay. Quite, I mean, अच्छा खासा she is not like interference तो है. बैक ऑफ द डेक में ये सोच रही है. ओके, सो शी माइट नॉट नो और वट एवर, बट या back of her mind she definitely feels that her mother-in-law is quite interfering. She always has कुछ सजेशन देने के लिए, ऐसे करो वैसे करो, नहीं करो वो करो, ये काइंड ऑफ थिंग. एंड शी इज लाइक, वो बोल नहीं पाती है नो. शी वॉन्ट्स टू टेल नो, आई डोंट वॉन्ट योर सजेशन. She wants to tell, but of course she is not able to tell. So I think कहीं ना कहीं नीतू कपूर का ही अपर हैंड है रिलेशनशिप में. अब यहाँ पे what she feels about her, oh exactly, see, she feels that she is first of all तो नाइट की तरह वो उसको देख रही है. नाइट is still not very mature, definitely more mature than Paige. But the bahu is also seeing her as कैसे कि नाइट है, and you know, नाइट ऑफ सोर्ड, like थोड़ा ज्यादा बोलना, थोड़ा ज्यादा पोकी नोज. यहाँ पे भी देखो तो अगर ये नाइट है तो ये अपने तलवार को लेके आगे बढ़ रहा है, तो काफी पोकी नोज है बेसिकली. एंड like maybe she thinks that she should be more mature, not like a knight. So वो चीजें हैं. 6 of Pentacles के साथ definitely she thinks that she is quite a giving person, you know, nurturing है, giving है. Yes, definitely she is quite giving, I think, giving and nurturing to both of them, taking care of the family, nurturing, yeah. And she feels कि नीतू कपूर काफी सोच समझ के कुछ भी चीजें करती है. You know, like she really takes her time to decide and then take decision. And आँख पे भी पट्टी बंधी हुई है यहाँ पे. So what does this really mean here? Yeah. No, quite on the contrary. Quite on the contrary. उसको लगता है कि वो, what does she feel about it? यहाँ 2 of Swords. यहाँ पे तो definitely she feels कि she is very nurturing, she is very giving, you know, taking care of others. ये सोचती है. She is quite outgoing with this Knight of Swords, okay? She is quite outgoing. She is quite outgoing, she is quite, you know, that style thing and all. Caring, nurturing, giving.
और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड के साथ व्हाट डज शी थिंक, क्या मतलब है इसका 2 ऑफ सोर्ड का? रेस्ट नहीं लेती है, काफी दूसरों का ही केयर करती रहती है। चलो यहाँ से देख लेते हैं क्या। आलिया भट्ट और नीतू कपूर एज हर मदर इन लॉ। सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। ओके, I don't know if she thinks, Neetu Kapoor kind of worries a lot about something, क्योंकि यहाँ पे 4 of sword in reverse है, तो वो किसी चीज़ का काफ़ी शायद नीतू सिंह वरी करती है, और एटलीस्ट शी फील्स दैट शी वरीज अबाउट समथिंग। नीतू कपूर किसी चीज़ का काफ़ी चिंता करती है, वरी करती है, और यहाँ पे भी कंफ्यूजन दिख रहा है पर्सनालिटी में, एज शी इज सीइंग हर। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग है, और नेगेटिव थिंकिंग ये आलिया भट्ट को क्यों लग रहा है कि उसकी सास नेगेटिव थिंकिंग कर रही है? क्योंकि क्या है कि हमने पिक किया है कि शी ऑलवेज हैज सम सजेशन और दी अदर, है ना। यहाँ पे वो सजेशंस देते रहती है आलिया को, या फिर दोनों कपल, इस कपल को। तो सजेशन आदमी कब देता है? जब उसको कुछ ठीक नहीं लगता है तो वो सजेशन देता है, राइट। और यहाँ पे इसे क्या लगता है जब उसको सजेशन मिलता है अपनी सास से कि इसके देखने का नजरिया काफी नेगेटिव है, क्योंकि जो भी मैं कर रही हूँ तो सही कर रही हूँ, इसमें क्या सजेशन की जरूरत है। तो क्योंकि वो सजेशन देती है तो इसको लगता है कि शी इज नेगेटिव, वो हर चीज को पॉजिटिव वे में नहीं देख रही है। फॉर एग्जाम्पल मे बी दिस कुड बी दे वॉन्ट टू गो समवेयर आउटसाइड एंड शी इज लाइक कि अभी शाम है, अभी बच्चे को लेके मत जाओ। तो शी इज लाइक कि अभी, तो उसने क्या किया, उसने एक एडवाइस दे दिया, नीतू कपूर ने उसने एक एडवाइस दे दिया, तो शी डजंट वांट्स टू टेक द एडवाइस। तो उसको लगता है कि ये क्या हर तरफ सजेशंस देते रहती है। वेरी सिंपल, राइट। हमारे बड़े बूढ़े जब हमको सजेशंस देते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि क्या ये लोग हमेशा सजेशंस देते रहते हैं, सब चीज तो ठीक है, इनको इतना प्रिकॉशन क्यों लेना है, इतना स्ट्रेस क्यों लेना है, हर चीज को बढ़ा चढ़ा के क्यों सोचना है। तो यही चीज हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी सेम थिंग, लाइक हमारे जो मम्मी पापा होते हैं काफी वो हमारे लिए चिंता करते हैं, तो वो हमें हमेशा प्रिकॉशनरी मेजर्स बोलते हैं कि ये करो वो करो, सही रहो, सही से सही टाइम पे बाहर जाओ, सही टाइम से बाहर पे घर के अंदर आ जाओ। एंड शी इज लाइक कि शी इज सीइंग इट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि इसको क्या लगता है कि वो अननेसेसरी सजेशंस देती रहती है, दैट काइंड ये है। बट नेवरदलेस उसको लगता है कि शी इज क्वाइट outgoing person, she is very active because she is seeing her mother-in-law as a knight of sword। इसका मतलब ही है कि she sees her mother-in-law as a very active person, जो कि हमको पता भी है कि she is very active। बाहर जाना, काम करना, फुर्ती से काम करना, she is very active actually as a knight of sword, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड इज द फास्टेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट। शी इज वेरी गुड विथ कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट। शी इज वेरी नर्चरिंग ऑल्सो, बैलेंस, हर चीज को ठीक करके रखना, घर को ठीक करना, बैलेंस करना, दैट एटिकेट्स एंड ऑल दैट। बट शी ऑल्सो फील्स दैट वो काफी सजेशंस देती है, शायद इसीलिए उसे लगता है कि वो नेगेटिव थिंकिंग करती है कुछ ज्यादा ही, और अपनी नोज को पोक करती है। एंड यहाँ पे उसे अगेन, यहाँ पे भी देखिए 4 ऑफ सोर्ड में वो रेस्ट नहीं ले रही है। तो रेस्ट नहीं ले रही है नीतू सिंह, तो अगेन वेरी एक्टिव, ऑलवेज ऑन द गो, हर चीज परफेक्ट होना है। तो दिस माइट बी कमिंग फ्रॉम बीइंग अ कपूर खानदान बहू, कि हर चीज एटिकेट, फिर यहाँ से वहां, ऑल द स्टाइल, ऑल द हाई लाइफ, हाई सोसाइटी लाइफ एंड ऑल दैट। तो वो चीजें हैं। बट या शी डजंट टेक्स रेस्ट, उसको लगता है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। आई थिंक यू वांटेड टू नो, आई थिंक दैट्स इनफ। ऑल राइट, सो और तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, सो दैट्स इट।